हेलो फ्रेंड्स, ਗਿਲਜ਼ ਮੈਂਟੋਰ ਈ ਲਰਨਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ 17 ਨਵੰਬਰ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੈਡੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਸੈਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਸ, ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ, ਪੀਪੀਐਸਸੀ, ਪੀਸੀਐਸ, ਐਸਐਸਸੀ, ਸੀਜੀਐਲ, ਸੀਐਚਐਸਐਲ ਔਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਟਸਐਪ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ। ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਸ਼ਨ। IBPS, RRB, JEE ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, SI ਔਰ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਬੈਚਿਸ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਚ ਨੂੰ ਅਵੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਵੇਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲੀ ਸਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਲਿੰਕ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਜਾਂ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਅਨਲੌਕ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਵੀਲ ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਐਨਰੋਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ ਔਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ MCQ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚੱਲਾਂਗੇ MCQ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। 14 ਨਵੰਬਰ ਵਰਲਡ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਡੇ। 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਡੇ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਡੇ। ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਡੇ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਧਨਤੇਰਸ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ 5th ਐਡੀਸ਼ਨ ਇਸ ਦਾ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਥੀਮ ਰਹੀ ਹੈ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰੋਲ ਆਫ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਇਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਫ COVID-19 ਪੈਂਡੇਮਿਕ। Potential role of Ayurveda in the management of COVID-19 pandemic. Next है 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਚਿਲਡਰਨਸ ਡੇ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਫਰਸਟ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਥ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਹੈ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਡੇ ਆਫ ਰਿਮੈਂਬਰੈਂਸ ਫॉर ਰੋਡ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਕਟਿਮਸ। ਵਰਲਡ ਡੇ ਆਫ ਰਿਮੈਂਬਰੈਂਸ ਫॉर ਰੋਡ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਕਟਿਮਸ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਤੀਸਰੇ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਸੰਡੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ 15 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ M ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੁੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਥਾਵਸਮੀ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਦ ਸਕਿੱਲਸ ਥਰੂ ਦ ਲੈਂਸ ਆਫ ਰਾਮਾਇਣ। ਜਿਸ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਰਲਾਬੰਦੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚਕਰਧਰ ਪਲਸ ਅਮਾਰਾ ਸਰਦਾ ਦੀਪਥੀ ਦੁਆਰਾ। ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੈ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਦੀ। ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਰਸਨ ਦੁਆਰਾ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਦ ਦੁਆਰਾ। ਤਾਂ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਦੁਆਰਾ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਆਈ ਐਮ ਨੋ ਮਸੀਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੋ ਔਥਰ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਨੂੰ, ਮੀਨਾ ਅਈਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਦੁਆਰਾ ਆਈ ਐਮ ਨੋ ਮਸੀਹਾ ਨਾਮ ਦੀ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਰਚਨਾ ਬਿਸਟ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਗਈ ਇਨਸੋਮਨੀਆ ਆਰਮੀ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਬਿਸਟ ਦੁਆਰਾ। ਬੋਸਕੀਆਨਾ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹਿੰਦੀ ਪੋਇਟ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ। ਹਿੰਦੀ ਪੋਇਟ ਨੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੁਝ ਕੰਪਾਈਲੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਬੋਕਸੀਆਨਾ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਕੰਪਾਈਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਐਡਿਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਿਆਸ ਦੁਆਰਾ ਔਰ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਸ਼ ਪਟੇਲ ਚੀਫ ਆਫ ਸਟਾਫ ਨਾਮਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਟੂ ਦਾ ਐਕਟਿੰਗ US ਡਿਫੈਂਸ ਸੈਕਟਰੀ ਕ੍ਰਿਸ ਮਿਲਰ। USA ਦੇ ਚੀਫ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਡਿਫੈਂਸ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਡਿਫੈਂਸ ਸੈਕਟਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਵੇਂ USA ਦੇ ਡਿਫੈਂਸ ਸੈਕਟਰੀ ਕ੍ਰਿਸ ਮਿਲਰ ਅਪੋਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੀਫ ਆਫ ਸਟਾਫ ਅਪੋਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪਰਸਨ ਕਾਸ਼ ਪਟੇਲ। ਅਤੁਲ ਕੁਮਾਰ ਝਾ ਫਲੈਗ ਆਫਿਸਰ ਨੇ ਚੀਫ ਆਫ ਈਸਟਰਨ ਨੇਵਲ ਕਮਾਂਡ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਥਲ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਟੂ ਦਾ ਵਰਕਫੋਰਸ ਆਫ ਨੇਵਲ ਡੌਕਯਾਰਡ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ 7 year old ਅਭਿਜੀਤਾ ਗੁਪਤਾ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਯੰਗੈਸਟ ਆਥਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬੁੱਕ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡ ਦੁਆਰਾ।
और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा इन्हों ग्रैंड मास्टर ऑफ राइटिंग कहा गया। ठीक है, क्यों कहा गया? इन्हों की बुक के करके हैप्पीनैस ऑल अराउंड। सिर्फ 7 साल की लड़की ने एक बुक लिखी है हैप्पीनैस ऑल अराउंड। ठीक है, इस करके इन्हों वर्ल्ड का यंगेस्ट ऑथर नामित किया गया। सादत रहमान बांग्लादेशी बॉय सादत रहमान ने इंटरनेशनल चाइल्ड पीस प्राइज़ दिता गया। इन्हों इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज़ दिता गया है एक एप्लीकेशन बनाने के लिए यंग पीपल नूं हेल्प करने के लिए ऑनलाइन अब्यूज़ तो बचने के लिए। हुण अब्यूज़ के रिलेटेड रिपोर्ट जारी करने के लिए इन्होंने एप्लीकेशन बनाई। अवॉर्ड किन्ना द्वारा दिता गया? अवॉर्ड इन्हों मलाला यूसुफज़ई के द्वारा दिता गया। ठीक है, अवॉर्ड की सैरेमनी कित्थे ऑर्गेनाइज की गई? नीदरलैंड द्वारा। अवॉर्ड किहड़ी फाउंडेशन द्वारा दिता जाता है? किड्स राइट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। ये 3 इंपोर्टेंट क्वेश्चन होर बनते हैं इत्थों कि किड्स राइट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इस अवॉर्ड नूं हर साल दिता जाता है। इस साल किन्ना दे हत्थों ये अवॉर्ड दवाया गया? मलाला यूसुफज़ई नूं नोबल पीस प्राइज़ दिता जा चुका है, ये याद रखने। तीसरी गल, नीदरलैंड दे विच ऑर्गेनाइज की गई सी सैरेमनी, उत्थे इन्हां नूं अवॉर्ड दिता जाएगा। नैक्सट है 11 ईयर ओल्ड बॉय प्रांजल एक 11 साल का लड़का है जो कि कानपुर तो बिलोंग करता है। इसने एक यूनीक रोबोट बनाया है जिहड़ा कि एयर पॉल्यूटेंट्स ने उन्होंने एब्जॉर्ब कर सकता है। ठीक है, हवा दे विच अगर कोई हार्मफुल कैमिकल्स ने उन्होंने अब्जॉर्ब करता है, एक रोबोट बनाया है। नैक्सट है WHO द्वारा ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन इन इंडिया। ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन बनाया जाएगा, एक सेंटर खोलिया जाएगा ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए WHO द्वारा इंडिया दे विच। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा सक्सैसफुली लॉन्च किया गया इनिशिएटिव डोर स्टेप सर्विस फॉर सबमिशन ऑफ डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट। डोर स्टेप सर्विस फॉर सबमिशन ऑफ डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट थ्रू पोस्टमैन। FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसने डिसाइड किया कि यह फूड सेफ्टी कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाएगी ताकि फूड सेफ्टी एमरजेंसीज नूं मैनेज किया जा सके अंडर चेयरमैनशिप ऑफ CEO अरुण सिंघल, जिहड़े FSSAI के CEO ने। FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। IRCTC की गल करते हैं तो भारत दर्शन दक्षिण भारत यात्रा शुरू की है IRCTC ने। कित्थों? हैदराबाद और सिकंदराबाद तो, जो साउथ इंडिया है उसकी यात्रा करने के लिए, टूरिज्म नूं इंक्रीज़ करने के लिए हैदराबाद और सिकंदराबाद तो शुरू की गई है अंडर थीम शो इंडिया टू इंडियंस। TCS द्वारा पार्टनरशिप की गई सेंटर ऑफ डिजिटल एंटरप्राइजेज यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड के नाल, ताकि वर्ल्ड का पहला एपैक डिजिटल सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स नूं लॉन्च किया जा सके। टू डेवलप वर्ल्ड फर्स्ट एपैक डिजिटल सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स। RBI की गल करते हैं। RBI द्वारा पेनल्टी लगाई गई है 1 करोड़ की पंजाब नैशनल बैंक के उत्ते। पंजाब नैशनल बैंक के उत्ते 1 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई गई। पंजाब नैशनल बैंक न्यू दिल्ली के विच हैडकुआटर है। CEO SS मल्लिकार्जुन राव। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने सुब्रमण्यम जयशंकर, इन्होंने रिप्रजेंट करने इंडिया नूं 15th ईस्ट एशिया समिट जो कि वियतनाम द्वारा होस्ट किया जाएगा। 15th ईस्ट एशिया समिट वियतनाम होस्ट कर रही है और इंडिया वालों S जयशंकर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च आयुर्वेदा दे लई जामनगर गुजरात दे विच और नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जयपुर राजस्थान दे विच इनोग्रेट किया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के राही इनोग्रेट किया गया सी, पर इंपोर्टेंट बनेगा कि किन्ना द्वारा किया गया। गौतम गंभीर जो कि MP ने, वैसे फॉर्मर क्रिकेटर ने, MP ने दिल्ली तो, इन्हों द्वारा इनोग्रेट किया गया 12 फीट लंबा जायंट एयर प्यूरीफायर गांधीनगर दिल्ली दे विच। एयर प्यूरीफायर हवा नूं स्वच्छ करने के लिए, कह सकते हैं प्योरीफाई करने के लिए, गांधीनगर दिल्ली दे विच इनोग्रेट किया गया एयर प्यूरीफायर। ऑंग सैन सू कई प्राइम मिनिस्टर इलैक्ट किए गए हैं म्यांमार के। म्यांमार कैपिटल नई पई था करेंसी
क्यात चलती है। नैक्सट है इंडिया और फिलीपीनस की गल करते हैं तो इंडिया और फिलीपीनस इज सैट टू साइन डील फॉर ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस मिसाइल के लिए डील साइन की जा रही है इंडिया और फिलीपीनस की। इट विल बी फर्स्ट साउथ ईस्ट एशियन कंट्री, फिलीपीनस ऐसी पहली साउथ ईस्ट एशियन कंट्री बनेगी जिन्होंने ये मिसाइल प्रोवाइड की जाएगी। नैक्सट है इंडियन नेवी द्वारा 5वीं स्कॉर्पियन सबमरीन वागीर मैगाजोन डॉक ऑफ साउथ मुंबई के लॉन्च किया गया है। डिज़ाइन की गई है फ्रांस के नेवल डिफेंस कंपनी द्वारा और बनाई गई है एज ए पार्ट बनाया गया इंडियन नेवी के प्रोजेक्ट 75 का। ठीक है, आज सारे जिन्नियां चीज़ां अंडरलाइन कीतियां ने इंपोर्टेंट रहनियां। इस तो इलावा लॉन्च किया गया श्रीपद येसो नायक द्वारा, श्रीपद येसो नायक द्वारा। ठीक है, ये 5वीं है तो पहली INS कालवरी सी 2017 के शुरू की गई, उस तो बाद खंडेरी कारंज वेला, तो 5वीं केड़ी है वागीर। होम मिनिस्टर अमित शाह की गल करते हैं, इन्होंने सरहद विस्तार विकास उत्सव शुरू किया, इनोग्रेट किया दो विलेज ऑफ कच्छ डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात गवर्नमेंट की ही गल करते हैं, इन्होंने द्वारा लार्जेस्ट टॉय म्यूजियम अनाउंस किया गया कि दुनिया का वर्ल्ड का लार्जेस्ट टॉय म्यूजियम गांधीनगर गुजरात के बनाया जाएगा। अयोध्या यूपी द्वारा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया हाईएस्ट दिए लगाने का, सब तो ज़्यादा द लार्जेस्ट डिस्पले ऑफ ऑयल लैंप्स कित्थे अयोध्या अयोध्या यूपी यूपी द्वारा ही कैंपेन शुरू किया गया मिशन रोजगार शुरू किया गया यूपी द्वारा। हरियाणा की गल करते हैं, चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने इन्होंने प्रोजेक्ट एयर केयर शुरू किया, एयर केयर इन गुरुग्राम टू कॉम्बैट एयर पोल्यूशन नू कंट्रोल करने के लिए। छत्तीसगढ़ की गल करते हैं, चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल ने इन्हों द्वारा 23 नवी तहसील लॉन्च की गई। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा इस साल की जी दिवाली है राजस्थान के मनाई गई, राजस्थान के जैसलमेर के लोंगोवाला पोस्ट के लोंगोवाला आर्मी पोस्ट है इत्थे जैसलमेर राजस्थान के है, और इत्थे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा इस साल की दिवाली ऑब्जर्व की गई। त्रिपुरा द्वारा ईको फ्रेंडली बैम्बू कैंडल्स और दियाज ऑब्जर्व किए गए, लॉन्च किए गए दिवाली के उत्ते, ताकि वोकल फॉर लोकल कैंपेन नू प्रमोट किया जा सके, जिसदे की हुंदा है कि लोकल बिजनेसिस नू प्रमोट किया जाता है। इंडियाज़ फर्स्ट सैंडलवुड म्यूजियम, इंडिया का पहला सैंडलवुड म्यूजियम कित्थे बनाया जा रहा है, आरण्य भवन अशोकापुरम मैसूरू कर्नाटका दे विच। मणिपुर चीफ मिनिस्टर N बीरेन सिंह की गल करते हैं, इन्होंने ऑयल पाम प्रोजेक्ट नू लॉन्च किया। उड़ीसा गवर्नमेंट द्वारा सांस प्रोग्राम नू लॉन्च किया गया, सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सैसफुली। निमोनिया के लिए सांस प्रोग्राम किहड़ी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, उड़ीसा द्वारा। दिल्ली की गल करते हैं कि यूनीक हैल्थ कार्ड इनिशिएटिव लॉन्च किया है दिल्ली द्वारा। MP की गल करते हैं, चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान नवे चीफ मिनिस्टर ने इत्थे थे, इन्होंने रोड मैप लॉन्च किया आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए, कडप्पा डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश के कडप्पा डिस्ट्रिक्ट नूं वाटर कंजरवेशन के लिए फर्स्ट प्राइज दिता गया। ठीक है जी, स्टैटिक पोर्शन के राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन अवार्ड कल भी डिस्कस किए थे अपने यंग टैलेंट के लिए लक्ष्य इंस्टीट्यूट और आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट। एनकरेजमेंट टू स्पोर्ट्स के लिए ONGC नूं दिता गया। एंप्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाने के लिए स्पोर्ट्स परसन नूं एयर फोर्स स्पोर्ट्स सेंट्रल बोर्ड नूं दिता गया, और स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट के लिए इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट नूं यह अवार्ड दिता गया। नैक्सट चलते हैं अज की फर्स्ट न्यूज़ के वल। फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल डे ऑफ टॉलरेंस। इंटरनेशनल डे ऑफ टॉलरेंस ऑब्जर्व किया गया 16 नवंबर नूं। 16 नवंबर नूं इंटरनेशनल डे ऑफ टॉलरेंस ऑब्जर्व किया गया। ठीक है जी, इस तो इलावा बाकी दिनों की गल करते हैं, कुछ इंपोर्टेंट डेज ने डिस्कस करांगे। सब तो पहले इंटरनेशनल डे ऑफ टॉलरेंस की गल करते हैं 16 नवंबर नूं ऑब्जर्व किया गया। इस दे रिलेटेड काफ़ी इंटरस्टिंग और इंपोर्टेंट न्यूज़ है, डिस्कस करते हैं कि
इस दिन यूनैस्को मदनजीत सिंह प्राइज़, यूनैस्को मदनजीत सिंह प्राइज़ एक अवार्ड दिता जाता है, यूनैस्को मदनजीत सिंह प्राइज़ फॉर द प्रमोशन ऑफ टॉलरेंस एंड नॉन वायलेंस। यह सेंटर रेजोल्यूशन सेंटर इस साल का जो 2020 का है, इस CRC सेंटर रेजोल्यूशन सेंटर फॉर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो जी कंट्री है उसका एक NGO है सेंटर रेजोल्यूशन सेंटर, सेंटर रेजोल्यूशन सेंटर, इसनों इस अवार्ड के नाल नामित किया गया। ठीक है, जिहड़ा ये अवार्ड है 1995 दे विच शुरू किया गया सी ऑन द ओकेजन ऑफ यूनाइटेड नेशन ईयर ऑफ टॉलरेंस, यूनाइटेड नेशन ईयर ऑफ टॉलरेंस और 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी। 125वीं बर्थ एनिवर्सरी सी जी महात्मा गांधी की 1995 दे विच, उदों इसनूं बनाया, इस अवार्ड नूं शुरू किया गया सी यूनैस्को मदनजीत सिंह प्राइज़। ठीक है जी, हर साल दिता जाता है। इस साल CRC डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो नूं इस अवार्ड दे नाल सन्मानित किया गया। नैशनल प्रेस डे, नैशनल प्रेस डे 16 नवंबर नूं ऑब्जर्व किया गया। जी प्रेस काउंसल है इस 4 जुलाई 1966 दे विच बनाई गई सी और इसने काम शुरू किया 16 नवंबर 1966 नूं, इस करके नैशनल प्रेस डे हर साल 16 नवंबर नूं ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है जी, 13 नवंबर की गल करते हैं, वर्ल्ड काइंडनेस डे, वर्ल्ड काइंडनेस डे ऑब्जर्व किया गया 13 नवंबर नूं। थीम रही काइंडनेस, द वर्ल्ड वी मेक इंस्पायर काइंडनेस। ठीक है जी, बाई चांस ये स्लाइड थोड़ी दिक्कत आ गई है स्लाइड दे विच। ठीक है, PDF दे विच तुहानूं सही मिल जाएगा। 13 नवंबर नूं वर्ल्ड काइंडनेस डे ऑब्जर्व किया गया। नेक्स्ट है, विच कंपनी हैज़ टर्नड कार्बन न्यूट्रल 30 years ahead of 2050 द टाइमलाइन सैटअप बाय पेरिस एग्रीमेंट। आप पेरिस एग्रीमेंट के बारे डिस्कस किया, रिसेंटली डिस्कस किया कि इस दे विचों USA ने जिहड़ा इसने एग्जिट किया, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के विच एग्जिट किया गया सी। ठीक है, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट है जिहड़ा उसदे द्वारा एक टाइमलाइन सैटअप की गई सी कि 2050 तक की करना है, कार्बन न्यूट्रल होना, यानी कि जिहड़ा कार्बन एमिशन है, आप काफ़ी बार डिस्कस किया है कि पहले डिस्कस किया चाइना के बारे कि चाइना ने कहा सी कि 2060 तक जीरो कार्बन एमिशन हो जाएगा। उस तो बाद जापान की गल करते हैं, जापान ने कहा 2050 तक, यूरोपियन यूनियन ने भी कहा 2050 तक। ठीक है, तो हुण एक ऐसी कंपनी बनी है इंडिया की जिसने यह टारगेट 30 साल पहले ही पूरा कर लिया, यानी कि 2020 के विच ही यह टारगेट अचीव कर लिया इन्फोसिस ने। इन्फोसिस पूरे तरीके नाल कार्बन न्यूट्रल हो चुकी है, यानी कि जीरो कार्बन एमिशन दे आ गई है इन्फोसिस। ठीक है, इंडियन कंपनी है, इस करके ज़्यादा इंपोर्टेंट बनेगी, अपने करके याद रखनी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हैज़ बीन अवॉर्डेड विद UN पॉपुलेशन अवार्ड, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन अवार्ड, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन अवार्ड हर साल किसी न किसी इंस्टीट्यूट में दिता जाता है। इस साल इंडियन इंस्टीट्यूट हेल्पेज इंडिया, फर्स्ट ऑप्शन हेल्पेज इंडिया, हेल्पेज इंडिया इंस्टीट्यूट है जिहड़ा 1978 दे विच बनाया गया सी, न्यू दिल्ली दे विच हैडकुआटर है। और ये ऐसा एक इंस्टीट्यूट है जिहड़ा कि एल्डर लोगों के लिए, एल्डर यानी कि ओल्ड परसनस के लिए यह काफ़ी ज़्यादा काम करता है, इनीशिएटिव लैंदा है। हेल्पेज इंडिया इंस्टीट्यूट नूं UN पॉपुलेशन अवार्ड, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन अवार्ड दिता गया। UN की गल करते हैं, यूनाइटेड नेशंस द्वारा 24 अक्तूबर नूं अपनी 75th एनीवर्सरी ऑब्जर्व की गई है, ये याद रखना काफ़ी इंपोर्टेंट रहेगा। 24 अक्तूबर 1945 नूं शुरू की गई सी यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस दे विच न्यूयॉर्क दे विच हैडकुआटर है। 6 एडी बॉडीज़ ने, 6 अगे डिफरेंट पार्ट्स ने यूनाइटेड नेशंस दे, जिन्हां दे विचों एक दा हैडकुआटर न्यूयॉर्क दे विच नहीं है। एक दा हैडकुआटर कित्थे है? ICG की गल करते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसका हैडकुआटर हेग नीदरलैंड दे विच है, हेग नीदरलैंड दे विच इसका हैडकुआटर। नेक्स्ट है, वट इज़ द नेम ऑफ डायरैक्टर ऑफ एनफोर्समेंट डायरैक्टरेट हू टेन्योर हैज़ बीन एक्सटेंडेड 1 year बाय सेंट्रल गौरमेंट। जिहड़ा एनफोर्समेंट डायरैक्टरेट है, एनफोर्समेंट डायरैक्टरेट है, ये 1956 दे विच बनाया गया सी, न्यू दिल्ली दे विच इसका हैडकुआटर है। ठीक है, ये बेसिकली
डिफरेंट लॉज की जी एनफोर्समेंट करने के लिए उसनों अच्छे तरीके नाल इंप्लीमेंट करने के लिए बनाया जाता है। ये जो डिपार्टमेंट है इसके डायरैक्टर ने संजय कुमार मिश्रा। इन्हों का टैनूअर इंक्रीज़ किया गया, इन्हों का टैनूअर है जोड़ा इंक्रीज़ किया गया, नाम इंपोर्टेंट बनेगा, याद रखना। ठीक है जी। एम राजेश्वर राव रिसेंटली आरबीआई के नवें डिप्टी गवर्नर अपॉइंट किए गए हैं। आरबीआई के एक गवर्नर होंगे ने, 4 डिप्टी गवर्नर्स होंगे ने, एक पोस्ट काफ़ी टाइम तो खाली चल रही थी, हुण उस पोस्ट के उत्ते एम राजेश्वर राव डिप्टी गवर्नर बनाए गए। सुनील सेठी की गल करते हैं, KVIC के बारे आप डिस्कस किया सी। खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, इस कमीशन के सुनील सेठी जो कि एक डिज़ाइनर ने, फैशन डिज़ाइनर ने, इन्हों एडवाइज़र अपॉइंट किया गया, एडवाइज़र अपॉइंट किया गया सी। KVIC से रिलेटेड न्यूज़ है, इस करके इस ऑप्शनस को आप इतने इंक्लूड किया है। KVIC से रिलेटेड जी न्यूज़ है उसनों डिस्कस करांगे। इस तो इलावा 2 ऑबीचरीज ने और डिस्कस करते हैं। सब तो पहले चंद्रवती इंपोर्टेंट नाम रहेगा, क्यों? क्योंकि फर्स्ट वूमेन MP से हरियाणा के पहले वूमेन MP सी। इस तो इलावा यह पुडीचरी या कह सकते हैं, या पौंडीचरी, इत्थे दे लैफ्टीनेंट गवर्नर रह चुके हैं। इत्थे दे लैफ्टीनेंट गवर्नर, अगर रीसेंट की गल करते हैं, पौंडीचेरी के लैफ्टीनेंट गवर्नर IPS ने किरण बेदी। ठीक है, यह लैफ्टीनेंट गवर्नर रह चुके हैं पौंडीचेरी के, प्लस पहले वूमेन MP से हरियाणा के, इन्हों की रिसेंटली डेथ हो गई। ठीक है। सौमित्रा चैटर्जी, एक्टर ने सौमित्रा चैटर्जी, इन्हों की रिसेंटली डेथ हुई है। इन्हों का नाम इस करके इंपोर्टेंट बनेगा, इन्हों काफ़ी ज़्यादा अवार्ड दिते गए थे, जिन्हों के विचों काफ़ी इंपोर्टेंट है पद्म भूषण 2004 के, दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2012 के, नाइट ऑफ लेजन ऑफ ऑनर 2018 के, और इस तो इलावा काफ़ी इंपोर्टेंट अवार्ड अगर गल करिए 1999 के विच, ये पहले ऐसे इंडियन फिल्म परसनैलिटी बने सी जिन्होंने ऑर्डर दे आर्ट्स डेस लेटर्स, फ्रांस का हाईएस्ट अवार्ड है आर्टिस्ट के लिए, फ्रांस का हाईएस्ट अवार्ड है आर्टिस्ट के लिए, जिहड़ा कि इंडियन परसन को दिता गया 1999 के विच, सौमित्रा चैटर्जी। नैक्सट है KVIC की गल करते हैं तो KVIC ने की करा, KVIC खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, इसने की करा एक मास्क लॉन्च किया, 2 लेयर्ड हैप्पी दिवाली फेस मास्क, 2 लेयर्ड हैप्पी दिवाली फेस मास्क KVIC द्वारा लॉन्च किए गए हैं। KVIC द्वारा पहला फुटवेयर लॉन्च किया गया। ठीक है, खादी फुटवेयर आप डिस्कस किया सी, वो भी याद रखना। ठीक है, फूड कम प्रोडक्शन सेंटर भी ओपन किया गया KVIC द्वारा। ठीक है, सारे फैक्ट्स याद रखने ने। नैक्सट है फाइनैंस मिनिस्ट्री की गल करते हैं, निर्मला सीतारमन के लवे है फाइनैंस प्लस कॉरपोरेट अफेयर्स मिनिस्टर ने, राज्य सभा MP ने कर्नाटका तो, इन्होंने अप्रूवल दी है फॉर क्रिएटिंग ऑफ नैशनल डाटाबेस फॉर अनऑर्गेनाइज्ड सैक्टर। अनऑर्गेनाइज सैक्टर की गल करते हैं या माइग्रेंट वर्करस की गल करते हैं तो पहला नैशनल डाटाबेस बनाया जा रहा है इन्हों के लिए, नैशनल डाटाबेस बनाया जा रहा है। उस दे लिए किन्ने करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं, 650 करोड़। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अमाउंट इंपोर्टेंट बनेगी इत्थे, क्योंकि पहला नैशनल डाटाबेस है, इस करके इंपोर्टेंट बनेगा माइग्रेंट वर्करस के लिए। ठीक है जी। इस तो इलावा लेबर एंड एम्पलॉयमेंट मिनिस्टर का नाम इंपोर्टेंट बनेगा, नाम कमेंट बॉक्स के दसोगे, बरेली उत्तर प्रदेश तो लोक सभा MP ने, लेबर एंड एम्पलॉयमेंट मिनिस्टर बरेली उत्तर प्रदेश तो लोक सभा MP ने, नाम तुसी दसना। ठीक है, फाइनैंस मिनिस्ट्री का नाम इंपोर्टेंट बनेगी, याद रखनी है, प्लस 650 करोड़ रुपए इस दे लिए एलोकेट किए गए हैं। फर्स्ट एवर नैशनल डाटाबेस बनाया जा रहा है माइग्रेंट वर्करस के लिए। नेक्स्ट है हु हैज़ वॉन 2020 टर्किश ग्रैंड प्रिक्स टाइटल। अगर इस पर्सन की गल करते हैं, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा, अगर भी मैनू पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इस पर्सन ने कदे हार मननी नहीं सीखी। 94th टाइटल जित रहे अपनी जिंदगी का, 94th टाइटल लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज के लिए ड्राइव करते हैं, ब्रिटेन तो बिलोंग करते हैं। लुइस हैमिल्टन कहते कि कोई बंदा सिर्फ जितन के लिए पैदा होंदा है, ये उन्होंने विचों एक बंदा है लुइस हैमिल्टन। 2020 टर्किश ग्रैंड प्रिक्स टाइटल जितया इसने, और यह इन्हों की 7th वर्ल्ड चैंपीयनशिप भी है। वर्ल्ड चैंपीयनशिप की गल करते तो इन्हों की 7वीं वर्ल्ड चैंपीयनशिप है, और 94th टाइटल है टर्किश ग्रैंड प्रिक्स टाइटल लुइस हैमिल्टन द्वारा।
ठीक है जी। इस तो इलावा अगर आप गल करते हैं इस मंथ ਦੇ ਵਿੱਚ इस ईयर ਦੇ ਵਿੱਚ जिन्ने भी ग्रैंड प्रिक्स टाइटल ऑर्गेनाइज किए गए हैं उन्होंने विचों याद किस तरीके नाल रखांगे आपां कि जेड़े इन्हां द्वारा नहीं जीते गए, क्योंकि ज़्यादातर इन्हां द्वारा ही जीते गए ने, तो किहड़े नहीं जीते गए? ऑस्ट्रियन हो गया, रशियन हो गया, 70th ग्रैंड प्रिक्स टाइटल हो गया, इस तो इलावा इटैलियन हो गया। ठीक है, तो ऑस्ट्रियन तो रशियन जिते ने वोल्टरी बोटास द्वारा, फिनलैंड तो बिलोंग करते हैं, प्लस अगर आप गल करिए मर्सिडीज़ के लिए ही ड्राइव करते हैं। मैक्स वर्सेटेपन द्वारा 70th ग्रैंड प्रिक्स टाइटल जितया गया, नीदरलैंड तो बिलोंग करते हैं और इन्हों की टीम मेरे माइंड चो स्किप कर रही है। पीरे गैसली की गल करते हैं, इटैलियन ग्रैंड प्रिक्स जिते इन्होंने, इटैलियन ग्रैंड प्रिक्स जिते फ्रांस तो बिलोंग करते हैं। ठीक है, और रेडबुल के लिए ड्राइव करते हैं। शायद मैक्स वर्सेटेपन रेडबुल तो ड्राइव करते हैं और पीरे गैसली मेरे माइंड चो स्किप करते, शायद कुछ होर टीम तो बिलोंग करते हैं, किसी होर दिन आप डिस्कस कर लाँगे। नैक्सट है विच स्पेस एजेंसी, किहड़ी स्पेस एजेंसी के एस्ट्रोनॉट्स जा रहे हैं 6 महीनों के लिए इंटरनैशनल स्पेस स्टेशन के उत्ते, इंटरनैशनल स्पेस स्टेशन के उत्ते। रीसेंटली अपने न्यूज़ डिस्कस की थी, 2 एस्ट्रोनॉट भेजे गए सी नासा के इंटरनैशनल स्पेस स्टेशन के उत्ते स्पेसएक्स द्वारा। ठीक है, स्पेसएक्स एक प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, अमेरिका की कंपनी है, वाशिंगटन DC के विच इसका हैडकुआटर है इसका भी। और स्पेसएक्स की गल करते हैं, एलन मस्क इसके हैड ने। ठीक है, ये हुण दोबारा एक मिशन भेज रहे हैं, स्पेसएक्स क्रू 1 ड्रैगन कॉल्ड रेजिलेंस नाम का इन्हों का रॉकेट है, उस भेज रहे हैं 4 एस्ट्रोनॉट्स नूं। किन्ने एस्ट्रोनॉट्स नूं? 4 एस्ट्रोनॉट्स नूं भेजा जा रहा है इंटरनैशनल स्पेस स्टेशन के उत्ते 6 महीनों के लिए। कौन जा रहे हैं? जा रहे हैं नासा और जैक्सा दे, यानी कि बोथ 1 and 2। फोर्थ ऑप्शन बोथ 1 and 2। 3 एस्ट्रोनॉट्स नासा के ने। अगर उन्होंने नाम की गल करते हैं, माइक हॉपिंस, नाम इंपोर्टेंट नहीं बनने, विक्टर ग्लोवर और शैनन वॉकर। इस तो इलावा जैक्सा की गल करते हैं, जापान की स्पेस एजेंसी है, एक एस्ट्रोनॉट इन्हों के एस्ट्रोनॉट्स का नाम है सोची नागुची। इस तरीके के इन्हों के नाम होंगे ने, तो इन्हों के नाम है सोची नागुची। जैक्सा जापान की स्पेस एजेंसी का नाम है, इन्हों के एस्ट्रोनॉट जा रहे हैं इंटरनैशनल स्पेस स्टेशन के उत्ते। ठीक है जी, एक नाम इंपोर्टेंट बनेगा कैथी सुलीवन का। कैथी सुलीवन भी इंटरनैशनल स्पेस स्टेशन के विच रहे सी। ठीक है, इन्हों के कोल रिकॉर्ड है कि सब तो ज़्यादा टाइम स्पेस के विच रहन दा। कैथी सुलीवन स्पेस के विच सब तो ज़्यादा रहन दा रिकॉर्ड है। उस तो बाद इन्होंने रिकॉर्ड बनाया, दूसरा रिकॉर्ड इन्होंने डीपेस्ट पॉइंट नूं, अर्थ के डीपेस्ट पॉइंट मैरियाना ट्रेंच कह सकते हैं, पैसीफिक ओशियन के विच है, या चैलेंजर डीप कह सकते हैं, उसनूं टच करने वाले भी फर्स्ट वूमेन बने सी। और स्पेस के सब तो ज़्यादा टाइम रहने वाले भी फर्स्ट वूमेन कैथी सुलीवन। ठीक है जी। सिमिलरली इसरो इंडिया की स्पेस एजेंसी का नाम है, याद रखना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज़ अडॉप्टेड 15 टाइगर्स फ्रॉम क्यूरेटर नेहरू जियोलॉजिकल पार्क तेलंगाना। ठीक है, हालांकि ये न्यूज़ इस तरीके नाल इंपोर्टेंट नहीं बन रही है, स्टैटिक दे करके इंपोर्टेंट बनेगी कि क्यूरेटर नेहरू जियोलॉजिकल पार्क केड़ी स्टेट दे विच है? तेलंगाना दे विच। ठीक है, तेलंगाना दे विच है क्यूरेटर नेहरू जियोलॉजिकल पार्क। और SBI की ब्रांच है जी हैदराबाद दे विच, तेलंगाना हैदराबाद दे विच SBI की ब्रांच है जी, उन्होंने द्वारा 15 टाइगर्स नूं 1 साल के लिए अडॉप्ट किया गया। यानी कि 15 टाइगर्स का जोड़ा खर्चा होएगा 1 साल का, वो कौन प्रोवाइड करेगा? SBI हैदराबाद प्रोवाइड करेगा। ठीक है जी, याद रखना। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद कैपिटल फाउंडेशन नेशनल अवार्ड फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू स्पोर्ट्स दे विच कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए कैपिटल फाउंडेशन नेशनल अवार्ड किन्ना द्वारा दिता जा रहा है? ये किन्ना द्वारा किन्ना नूं दिता गया? किन्ना नूं दिता गया? नरेंद्र बत्रा जो कि इंडियन ओलंपिक कमेटी के हैड ने, इंडियन ओलंपिक ऑर्गेनाइजेशन कह लिए या इंडियन ओलंपिक कमेटी कह लिए या इंडियन ओलंपिक एसोसीएशन कह लिए, तो इसके हैड कौन ने? नरेंद्र बत्रा। इन्हों कैपिटल फाउंडेशन नेशनल अवार्ड के नाल सन्मानित किया गया। इस तो इलावा यह ही इंटरनैशनल हॉकी फैडरेशन के भी प्रेजिडेंट ने, इंटरनैशनल हॉकी फैडरेशन के प्रेजिडेंट ने, इंडियन ओलंपिक कमेटी के प्रेजिडेंट ने,
इस तो इलावा जी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है उसदे विच भी ये मैंबर ने, इन्हों रिसेंटली ही मैंबर भी अपॉइंट किया गया सी और इन्हों कैपिटल फाउंडेशन नैशनल अवार्ड दिता गया। ठीक है जी, ये याद रखना। प्रफुल्ल पटेल की गल करते हैं, यह जी इंडियन फुटबॉल फैडरेशन है, फुटबॉल फैडरेशन ऑफ इंडिया है, उसके हैड कौन ने? प्रफुल्ल पटेल ने। ठीक है, और जी ऑर्गेनाइजेशन है अगर आप गल करते हैं फुटबॉल के लिए तो फीफा है, तो फीफा की गल करते हैं जुरीच स्विट्जरलैंड के हैडकुआटर है, इसके जोड़े हैड ने ज्ञानी इन्फेंटिनो ने, ज्ञानी इन्फेंटिनो। फीफा के इंडिया की रैंकिंग 109 है, ये भी याद रखनी है। और फीफा का 2022 का वर्ल्ड कप कतर के ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। सौरभ गांगुली BCCI के प्रेसिडेंट ने, BCCI के हैड ने बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया। 39 नंबर के हैड ने, मुंबई के हैडकुआटर है, याद रखना। अदिले सुमनरीवाला, अदिले सुमनरीवाला यह एथलैटिक फैडरेशन ऑफ इंडिया के हैड ने, रिसेंटली इन्हों री इलैक्ट किया गया, याद रखना। एथलैटिक फैडरेशन ऑफ इंडिया, एथलैटिक फैडरेशन ऑफ इंडिया के हैड कौन ने? अदिले सुमनरीवाला। नेक्स्ट है who will unveil the statue of peace in Rajasthan's Pali district to mark the 151th birth anniversary of Jain monk Acharya Shri Vijay Vallabh Surishwar जी महाराज। जैन मॉन्क ने आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज का स्टैचू बनाया गया, उन्होंने 151वीं बर्थ एनिवर्सरी के उत्ते। स्टैचू का नाम स्टैचू ऑफ पीस रखा गया, राजस्थान के पाली डिस्ट्रिक्ट के विच इसनूं इनोग्रेट किया गया। अगर इसकी हाइट की गल करते हैं तो 151 सेंटीमीटर है, 151 सेंटीमीटर नहीं कहेंगे, इंच कह लाँगे, 151 इंच है। ठीक है, टॉल 151 इंच टॉल स्टैचू है, 8 मैटल्स तो बनाया गया, ज़्यादातर कॉपर की हैल्प के नाल बनाया गया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा इसनूं इनोग्रेट किया गया। ठीक है जी, याद रखना। इस तो इलावा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वाराणसी यूपी तो लोक सभा MP ने, इन्होंने रिलेटेड एक होर न्यूज़ है डिस्कस करते हैं। अमित शाह गांधीनगर गुजरात तो लोक सभा MP ने, होम मिनिस्ट्री इन्हों लवे। राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर ने, लखनऊ उत्तर प्रदेश तो लोक सभा MP। गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति मिनिस्ट्री है, जोधपुर राजस्थान तो लोक सभा MP ने। राजस्थान तो याद रखना कि राजस्थान तो किहड़े मिनिस्टर ने? जोधपुर राजस्थान तो गजेंद्र सिंह शेखावत लोक सभा MP ने। डॉक्टर हर्षवर्धन हेल्थ मिनिस्ट्री, अर्थ साइंस मिनिस्ट्री और साइंस एंड टैक्नोलॉजी मिनिस्ट्री इन्हों लवे। दिल्ली चांदनी चौक तो लोक सभा MP ने। सब तो पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के रिलेटेड न्यूज़ है इंपोर्टेंट है, डिस्कस करांगे कि इन्होंने आप डिस्कस किया कि 17th एशियन इंडिया समिट, एशियान इंडिया समिट ऑर्गेनाइज किया गया, 17वां समिट, जिस दे विच इंडिया वालों प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पार्टिसिपेट किया। तो इन्होंने उत्थे की अनाउंस किया है कि 1 मिलियन US की गल करते हैं तो 1 मिलियन US प्रोवाइड करेगा इंडिया इन एशियान कोविड-19 रिस्पॉन्स फंड। एशियान कोविड-19 रिस्पॉन्स फंड के 1 मिलियन प्रोवाइड कर रहा है इंडिया। ठीक है जी, इंडिया की दयालुता अगर गल करते हैं तो इत्थे दोबारा दर्शा आती है कि एशियान जिहड़ा ग्रुप है जिसदे विच 10 मैंबर कंट्रीज़ ने। जकार्ता इंडोनेशिया दे विच हैडकुआटर है, इंडिया एज ए ऑब्जर्वर मैंबर है। ठीक है, याद रखना। गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति मिनिस्ट्री इन्होंने लवे। इन्होंने की करिया, जल शक्ति मिनिस्ट्री ने फर्स्ट प्राइज़ दिता है वाटर कंजरवेशन मैनेजमेंट के लिए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को फर्स्ट प्राइज़ दिता गया वाटर कंजरवेशन मैनेजमेंट के लिए। ठीक है जी, डिफरेंट कैटेगरीज़ की गल करते हैं आप। स्टेट कैटेगरी के भी डिस्कस किया, तमिलनाडु को अवार्ड दिता गया। उस तो बाद डिस्ट्रिक्ट के आंध्र प्रदेश के बारे कल डिस्कस किया। इस तो इलावा श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को भी वाटर मैनेजमेंट अवार्ड दिता गया। डॉक्टर हर्षवर्धन आप हुणे डिस्कस करते हैं हेल्थ मिनिस्ट्री तो इलावा इन्होंने लवे साइंस एंड टैक्नोलॉजी मिनिस्ट्री है। तब 8वीं ब्रिक्स की साइंस टैक्नोलॉजी इनोवेशन मिनिस्टर मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई, जिसदे विच ब्रिक्स STI डिक्लेरेशन, STI यानी कि साइंस टैक्नोलॉजी एंड इनोवेशन डिक्लेरेशन 2020 अडॉप्ट किया गया, जिसदे विच इंडिया वालों डॉक्टर हर्षवर्धन इंडिया के साइंस एंड टैक्नोलॉजी मिनिस्टर द्वारा रिप्रजेंट किया गया।
ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਲੋਨਾਰ ਲੇਕ। ਲੋਨਾਰ ਲੇਕ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਚੁਏਟਡ ਹੈ? ਲੋਨਾਰ ਲੇਕ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਚੁਏਟਡ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है, स्टैटिक ਦੇ ਵਿੱਚ क्वेश्चन ये पक्का पूछा जाएगा, काफ़ी इंपोर्टेंट न्यूज़ है इस ਦੇ रिलेटेड। इस तो इलावा बाकी स्टेट ਦੇ रिलेटेड भी न्यूज़ ने डिस्कस करते हैं। स्टैटिक फैक्ट्स अज आप नहीं डिस्कस करांगे। सब तो पहले लोनार लेक बुल्दाना डिस्ट्रिक्ट ਦੇ ਵਿੱਚ है महाराष्ट्र ਦੇ। और प्लस अगर आप गल करिए सुर सरोवर जिसनों कीथम लेक भी कहा जाता है, ये आगरा यूपी ਦੇ ਵਿੱਚ है। आगरा यूपी ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 27 ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟਸ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟਸ ਹੋਰ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 37 ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਦੋ ਹੋਰ 38 ਔਰ 39। ਇੱਕ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਸੀਗੀ। ठीक है, उत्तराखंड की पहली रामसर साइट सी और उस तो बाद दूसरी बिहार तो डिस्कस की सी। तो 39 हो गई सी। हुण दो होर डिस्कस कर लिए, यानी कि टोटल 41 रामसर साइट्स हो चुकी ने इंडिया दे विच। उत्तराखंड की गल करते हैं, जिम कॉर्बेट नैशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नैशनल पार्क है जिहड़ा उत्तराखंड दे विच है। क्वेश्चन स्टैटिक च पूछा जा सकता है जिम कॉर्बेट नैशनल पार्क कित्थे है? उत्तराखंड दे विच। ठीक है जी, इस दे विच इसने की शुरू कराया वूमेनस नेचर गाइड। वूमेन ऑफिसर्स ਨੂੰ अपॉइंट किया जाएगा नेचर गाइड के लिए पहली बार जिम कॉर्बेट नैशनल पार्क के विच। झारखंड गौरमेंट द्वारा रेजोल्यूशन पास किया गया सरना रिलीजन के रिलेटेड। डिफरेंट रिलीजनस ने, उन्होंने एक सरना रिलीजन है, उत्थों की बेसिकली ट्राइब है, उन्होंने द्वारा सरना रिलीजन फॉलो किया जाता है झारखंड के विच। तो जिहड़ा सरना रिलीजन है, इस रिलीजन ਨੂੰ रिकोगनाइज करने के लिए और 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਸਿਸ ਹੋਣੇ ਨੇ, हर 10 साल के बाद ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। 2011 के ਸੈਂਸਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ही ਆਪਾਂ डिफरेंट ਜਿਹੜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਕੀਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਸਿਸ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਨਾ ਰਿਲੀਜਨ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਕੋਡ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ झारखंड गौरमेंट द्वारा। ठीक है जी, अच्छा झारखंड बारे ही याद रखना है। 15 नवंबर लंघ के गई है। 15 नवंबर ਨੂੰ झारखंड का फाउंडेशन डे ਸੀਗਾ। झारखंड ਨੂੰ ईयर 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। बेसिकली बिहार तो अलग किया गया ਸੀ। झारखंड और बिहार इकट्ठी एक स्टेट ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ अलग किया गया 15 नवंबर 2000 ਨੂੰ। बिहार की ही गल करते हैं तो बिहार के चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किए जा रहे हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर बन गए बिहार के 7वीं बार। ठीक है जी, अगर आप गल करते हैं तो दो इंपोर्टेंट चीज़ा ने, दोनों डिस्कस करते हैं कि चीफ मिनिस्टर 7वीं बार बननगे, पर अगर कंप्लीट टर्म की गल करते हैं तो इन्हों की चौथी बार है। ठीक है, यानी कि 7 बार इन्होंने चीफ मिनिस्टर की ओथ ली है, पर 3 बार 7 बार यानी कि 7वीं बार ले रहे हैं, यानी कि 6 बार लै चुके हैं। तो 6 के विचों 3 बार इन्हों की टर्म कंप्लीट हुई सी। 5 साल की टर्म होंगी है जी कंप्लीट की सी, और 3 बार ये कंप्लीट नहीं कर सके सी। ठीक है, याद रखना, इत्थे थोड़ी कन्फ्यूजन है, ध्यान नाल क्वेश्चन आंसर करना कि चौथी बार एज ए कंप्लीट टर्म शपथ ले रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च जीवन सेवा एप्लीकेशन। जीवन सेवा एप्लीकेशन लॉन्च की गई है सेफ एंड टाइमली ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कोविड-19 पेशेंट्स की। तो दिल्ली द्वारा ही हैल्थ कार्ड इनीशिएटिव लॉन्च किया गया, कल आप डिस्कस किया सी। हुण जीवन सेवा एप्लीकेशन भी लॉन्च की गई है दिल्ली गौरमेंट द्वारा। ठीक है जी, दिल्ली के बारे याद रखना, लैफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बेजल ने, और चीफ मिनिस्टर की गल करते हैं तो अरविंद केजरीवाल ने। अच्छा, पौंडीचेरी की गल करते हैं, पौंडीचेरी ने फ्री ब्रेकफास्ट स्कीम शुरू की है। ठीक है, फ्री ब्रेकफास्ट स्कीम पौंडीचेरी द्वारा शुरू की गई है। बेसिकली इत्थे DMK तमिलनाडु और पौंडीचेरी इत्थे एक पॉलिटिकल पार्टी है, जिस तरीके नाल अपने इत्थे नॉर्थ इंडिया दे विच आम आदमी पार्टी काफ़ी है ज़्यादा चलती है। तो DMK इस तरीके नाल तो एक पार्टी है, इसके प्रेजिडेंट ने M करुणानिधि उन्होंने नाम के उत्ते इस फ्री ब्रेकफास्ट स्कीम नूं स्टूडेंट्स नूं फ्री ब्रेकफास्ट करवाया जाएगा जदों स्कूल्स वगैरह खुल जाएंगे प्रॉपरली। इन्हां नूं उस स्कीम नूं प्रॉपर तरीके नाल लॉन्च किया जाएगा। ठीक है जी, ये याद रखना। इस तो इलावा एक क्वेश्चन पूछा गया सी बेसिकली कि IPL के रिलेटेड किसी ने क्वेश्चन पूछा सी
ਕਮੈਂਟ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਈਜ਼ੀਲੀ ਮੈਂ ਆਨਸਰ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ IPL ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ IPL ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਨੀ ਹੈ ਉਹ 50% ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, IPL ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਨੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ 50% ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵਿਨਿੰਗ ਟੀਮ ਹੈ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪੀਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਸੀ, ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ IPL ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਨਿੰਗ ਟੀਮ ਨੂੰ 10 ਕਰੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਰਨਰ ਅਪ ਟੀਮ ਹੈ ਰਨਰ ਅਪ ਟੀਮ ਨੂੰ 6.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਦ ਸੈਸ਼ਨ। ਗੁੱਡ ਬਾਏ।